Hello friends, myself Ras Deepak Singh, and in this particular video I'm going to talk regarding this exam which I have given yesterday. My exam was like on 18th of July and yesterday and in the first shift. Okay, so I have also given the exam, and we are going to talk in this particular video regarding everything regarding the FCI AGM General Administration exam. Okay, I have like given this exam in the first shift, and my reporting time was like around 8:30. So, and the exam was started on at 10 to 12:30 was the exam. Okay, so in this particular video I'm going to give you my exam analysis, and I'm going to give you what type of questions they have like targeted in this particular exam, what type of questions they have asked, what was the level of the exam, and regarding everything which is being taken in this particular video. Okay, so let's start. Look, as in the previously held videos which I have like posted, I have told you very different strategies, many strategies. And one thing I found in this particular exam was the exam was curated. The exam was like they have given the questions based on that criteria. Okay, if any aspirants or any viewers who is right now watching my video, this video, he actually feels that whatever I have told, like out of 100% you are getting like 85 to 90% of the content, you can say that you are getting from this channel. I can say that because like I have targeted selected sections, I have targeted selected videos with respect to the sections of management and ethics, agriculture economy, computer awareness, and the general awareness and general knowledge. Okay, so I found that the exam was very strict to the syllabus according to me. Look, what they have given the syllabus in their like official notice, like they have very strict to the syllabus, but we will talk section by section. Look, first of all, जो मैथ्स और रीजनिंग का था, लाइक मैथ्स और रीजनिंग 45 क्वेश्चंस थे. सो लाइक मतलब जो मेरे शिफ्ट में था उसमें लुक जो पहला ही था उन्होंने पजल डाला हुआ था. जो पहला क्वेश्चंस था वो लाइक 4 पजल्स का था, 4 की 5 पजल्स था और वो पजल था इस पे आपका जो पहला पजल था, आई थिंक आई एम रिमेंबरिंग दे हैव गिवन द पजल ऑन wait, I have to remember. The first puzzle they have given is like this, your based on this certain number of person, like yes, certain number of person were there. हाँ, सर्टेन नहीं, 8 पीपल्स थे, लाइक लीनियर अरेंजमेंट था. ओके, पहला क्वेश्चन जो था वो लीनियर अरेंजमेंट में, मतलब हमारे शिफ्ट में था, लाइक लीनियर अरेंजमेंट था. उसमें 8 पीपल थे, 8 पर्सन थे, और उनको लाइक दोनों नॉर्थ साउथ देख रहे थे. कुछ पर्सन नॉर्थ देख रहे थे, कुछ पर्सन साउथ देख रहे थे, और उसे सॉल्व करना था. सो उसमें लाइक उसमें केसेस था, थोड़ा सा ट्रिकियर था, बट द वन हु स्टिक टू द पजल, लाइक जिन्होंने पजल का लाइक नॉलेज होगा वो आराम से कर ले गए होंगे. ओके, एक पजल तो ये आया था लीनियर बेस्ड. एक पजल था लाइक ये आपका बॉक्स बेस्ड पजल था. 6 पीपल्स थे, 6 पर्सन थे, और क्या बोलते हैं 6 और एक वेरिएबल था, लाइक उसमें हर पर्सन कुछ ना कुछ लाइक कर रहा है, लाइक बुक्स, पेन और पर्स वगैरह, ऐसा होता है ना, हर पर्सन लाइक कर रहा था. तो उसके बेस पे हमें अरेंज करना था. 2 वेरिएबल का पजल था और इसके बेस पे लाइक 4 क्वेश्चंस थे. ओके, इसमें 4 क्वेश्चन थे. 2 पजल तो ये हो गए, और एक ब्लड रिलेशन था, तो उसमें 3 क्वेश्चंस थे. वो ब्लड रिलेशन, उसमें भी 2 केस बन रहे थे ब्लड रिलेशन में. और एक था आपका ये लाइक जो आपका ये कंपैरिजन बेस्ड पजल नहीं होता, 3 क्वेश्चंस थे लाइक हाइट वाले जिसमें हाइट दिया होता. उसमें मैंने एक चीज़ पाया कि लुक, क्वेश्चंस तो लाइक ओके था, मतलब मॉडरेट लेवल का था, जो हाइट वाला था जिसमें कंपैरिजन करते हैं लाइक कौन किससे बड़ा है. लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ देखा, इन्होंने जो 3 क्वेश्चंस दिए थे उसमें 2 क्वेश्चंस काफ़ी घुमा करके दिए थे, बहुत ही घुमा करके दिया था. लाइक उन्होंने 2 पर्सन का सम दे रखा था, फिर नेक्स्ट 2 पर्सन का सम दे रखा था, और उसमें पॉसिबिलिटी बतानी थी कि जो रेस्ट ऑफ द 2 पर्सनस हैं उसमें से एक पर्सन की हमें एज की पॉसिबिलिटी बतानी थी. तो ये क्वेश्चन में लाइक मुझे 3 मिनट्स लग गए. लाइक हाँ, यस, इस क्वेश्चन को मैंने लाइक बहुत एक बार तो करके फिर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने कर दिया. और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट सम ऑफ द एजेस पूछा था, रेस्ट ऑफ द 2 पर्सन का सम ऑफ एजेस पूछा था, और तीसरा क्वेश्चन तो नॉर्मल था. ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हाइट एंड बेस्ड आए थे. और आपका आया था सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चंस थे, वो उस पर ओनली अ फ्यू पे भी एक क्वेश्चन था. हाँ, ओनली अ फ्यू पे था. ठीक है, सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस था. वेट, एक पजल और थी जो मुझे याद नहीं आ रहा. एक पज़ल उन्होंने लाइक देखो, एक तो बॉक्स बेस्ड पज़ल मैंने बता दिया आपको. एक उन्होंने पज़ल ये आपकी
ये लीनियर अरेंजमेंट वाली थी, और एक पज़ल आई एम नॉट गेटिंग दैट पज़ल। वो पज़ल मैंने लाइक किया है एग्ज़ाम में, बट आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ दैट पर्टिकुलर पज़ल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द रीजनिंग सेक्शन। बहुत ही लाइक स्टिक टू द सिलेबस थे वो, और क्या बोलते हैं, ये 3 पज़ल आए थे, लेकिन हमारे शिफ्ट में 3 पज़ल आए थे। ओके, और लाइक बाकी मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, हाँ एक एक नंबर वाले। एक तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का था, उसका मुझे याद है कि उसका शायद 3 आंसर था। यस, आई एम गेटिंग कि सिर्फ 3 आ रहा था, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड में। और क्योंकि लास्ट में लाइक वाई दे रखा था, वाई या सेकंड लास्ट में वाई वर्ड था, उससे जब आप बैकवर्ड जा रहे थे तो उससे कोई भी वर्ड नहीं बन रहा था। ठीक है, सो एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन उन्होंने लाइक इस पे दिया था, लाइक आपके नंबर दे रखे थे, 8-9 नंबर दे रखे थे, उसमें ऑड को एक नंबर बढ़ाना था, फिर इवन को घटाना था ऐसे, और फिर क्या बोलते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेफ़्ट टू राइट उसको अरेंज करना था, और फिर बताना था कि लेफ़्ट से 3rd नंबर पे कौन सा डिजिट है। ओके, सो एक क्वेश्चन ये आया था, एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिक पे आया था, 1 नंबर का ही था, अल्फ़ाबेटिक बेस्ड। ओके, सो दिस इज़, और टोटल रीजनिंग में क्वेश्चंस थे, आई थिंक रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस थे, जितना मुझे याद आ रहा है। नाउ वी विल टॉक ऑन मैथ्स। ओके, मैथ्स में क्या था, बहुत ही लाइक 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज़ का था। ठीक है, एक उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल था, बाकी 4 हो रहे थे, एक थोड़ा सा उन्होंने घुमा के दिया था। तो ये 10 क्वेश्चन ये हो गए, और एक आई थी लाइक एक डाटा इंटरप्रिटेशन आई थी। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या दिया था उन्होंने कि 600 लाइक उन्होंने 600 उन्होंने गीगावाट दे रखा था, शायद 600 गीगावाट दे रखा था, ऐसे कुछ, मतलब 600 था, वैल्यू एकदम एग्जैक्ट है। और फिर उस 600 को लाइक CDEF में परसेंट में बांटा था, लेकिन ये जो DI थी इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मतलब नॉर्मल था, बाकी जो 3 क्वेश्चन थे ना, 3 नहीं 4 क्वेश्चन थे बाकी, वो बहुत ही लाइक घुमा के दिया था उन्होंने। 2 क्वेश्चन लाइक लुक, एक सेंट्रल एंगल पूछा था, वही बस इजी था, उसका आंसर भी लाइक 72 डिग्री आ रहा था उसका आंसर, लेकिन सेंट्रल एंगल का। लेकिन बाकी के जो 4 क्वेश्चन थे डाटा इंटरप्रिटेशन में, वो बहुत ही लाइक उन्होंने उनको लाइक 5-6 लाइन में क्वेश्चन दिया था, और उसको हमें सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन मुझे याद है उन्होंने Z की वैल्यू पूछी थी, तो वो बहुत लाइक उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था। एक क्वेश्चन मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन का गलत लगा, आई डोंट नो वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट, बट आई फाउंड दैट क्वेश्चन रॉन्ग, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने C और F की वैल्यू, जैसे C और F का आपने कैलकुलेट किया, लेट्स सपोज C का 90 है और F का 60 है, 90 वाट 60 वाट। उन्होंने ये बोला था कि जो एक पर्सन है वो C में केस ये दिया था कि C का जो पर्सन है वो 60% इसको क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ था कि 60% यूज़ कर ले रहा है, 60% नहीं यूज़ कर रहा है, और वही केस F में भी है कि 60% नहीं यूज़ कर रहा है। तो उसमें पूछा था कि आपको बताना है डिफरेंस C और F का, कि वो कितना यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना यूज़ कर रहे हैं इसका डिफरेंस, तो 60% था, तो 40% आप इसका निकालोगे C का, और 40% आप F का निकालोगे, जो भी आंसर आएगा उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, और जो सब्सट्रैक्ट करोगे वही आपका लाइक आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने किया तो आई फाउंड दैट द क्वेश्चन वाज लाइक आंसर नहीं आ रहा था इसका। ओके, आंसर मेरा 12 आ रहा था, हर टाइम 12 ही आ रहा था, 12। मैंने इसको कम से कम 6 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लाइक ऐसा नहीं कि लगातार किया था, लाइक छोड़ के किया था, मैं और कोई क्वेश्चंस पे गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ये हो जाएगा मेरे से, तो फिर जब मैं गया लेकिन हुआ नहीं मेरे से, फिर लास्ट में 12 ही आया इसका। फिर जब एक मतलब दूसरा मैंने मेथड यूज़ किया तो उसमें अप्रॉक्स 20 आ रहा था, और 20 ऑप्शन में था, तो 20 मैंने टिक करा है, लेकिन आई थॉट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, बट लेट्स सी if you found that question was wrong, please do feedback in this comment section of this particular video, okay, so that we have a broader idea on that particular question, because I found that question like very trickier with respect to the exam point of view. ओके, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो था, मुझे जितना याद आ रहा है कि उस क्वेश्चन में जो उन्होंने 40% निकलवाया था और जो डिफरेंस निकाला था, उन्होंने शायद उस क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस निकाल करके उसका परसेंटेज भी निकालते ना, उसमें परसेंटेज नहीं पूछा था उन्होंने, डिफरेंस ही पूछा था, लाइक C और F का आपकी डिफरेंस क्या होगी। ओके, सो ये एक मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा वो लगा। सो ये एक मैंने आपको बताया, और एक ही DI दिया था, उसके बेस पे 5 क्वेश्चंस थे, और एक मैं आपको, और रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन मैथ्स में मैंने देखा वो मिसलिनियस का इन्होंने डाला था। ओके, मिसलिनियस के लाइक क्वेश्चंस थे, सिंपल लाइक उन्होंने एज बेस्ड डाला था, रेशियो बेस्ड डाला था, एक सिंपल इंटरेस्ट का भी था। ओके, और एक क्वेश्चन उन्होंने लाइक मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो ये एक क्या बोलते हैं 45 क्वेश्चंस का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। ओके, एंड लुक, वन पजल आई एम मिसिंग
if any person who have like attempted this shift, please do feedback in this comment section that what was that puzzle, because I'm not getting that particular puzzle. एक बॉक्स बेस था, एक ये लीनियर अरेंजमेंट था, और एक पज़ल उन्होंने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा किया है. अगर आप मुझे लाइक एक नंबर ऑफ़ पर्सन, अगर नहीं नंबर ऑफ, चलो मूव ऑन, वी विल discuss later. Okay, so this is regarding the complete analysis of maths and reasoning. Look, in this particular section I have attempted out of 45 question complete, मैंने total 45 question attempt किए maths और reasoning में, because look, puzzle मुझे थोड़ा सा trickier लगा था. puzzle जो questions था like वो बहुत time taking था. मेरे 5 से 6 cases बन गए थे एक question में, तो so उसमें मैंने थोड़ा time waste कर दिया अपना, but I have attempted anyway like 45 question. I have attempted all questions of this maths and reasoning. Now let's talk on this general awareness and general knowledge. Okay, this current general awareness and general knowledge, current affairs section, basically the mixture of everything, general knowledge and general awareness. तो इसमें जो questions आए थे, इसमें सभी का mixture था. like डाटा बेस्ड भी क्वेश्चन इन्होंने दिए थे, like institutions के हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे. look, इसमें क्वेश्चन जो मैं आपको बता सकता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे मिला था, क्वेश्चंस तो बहुत थे, like एक वो ये एक साइक्लोन का कोई नाम पूछा था, टॉकट का करके था. उसका आंसर शायद करेक्ट आंसर उसका वो है कैम्बोडिया है, नॉट कैम्बोडिया, सॉरी, म्यांमार ने लाइक वो नाम दिया था. साइक्लोन टॉक, पता नहीं क्या नाम था, टॉकट करके था, ऐसे था, जो भी है. उसका जो करेक्ट आंसर है वो ये म्यांमार है, म्यांमार. आई हैव डन दिस क्वेश्चन रॉन्ग. आई हैव थॉट दैट द आंसर वाज मालदीव्स, बट आई आफ्टर द एग्ज़ाम आई बिकॉज मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न था इन दो ऑप्शन में, म्यांमार और मलेशिया, ये मालदीव्स में. So I have done this question wrong, and one question was an HSN का कोड पे था कि ये कौन सा लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल था, कौन सा इसको लाइक वो करता है, इस कोड को बताता है. तो ये इसका कस्टम्स करके है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कस्टम्स वगैरह करके था इसका आंसर. और क्वेश्चंस थे लाइक उन्होंने एक तो नेशनल काउंसिल ऑफ NACER, नेशनल अप्लाइड काउंसिल ऑफ रिसर्च करके जो भी है इंस्टीट्यूशन, इसके लाइक डायरेक्टर पूछे थे या फिर चेयरमैन जो भी होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर था पूनम गुप्ता. पूनम गुप्ता इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और ये हो गए. और क्वेश्चन बहुत सारे थे, लाइक उन्होंने पूछा था कि हाँ, एक क्वेश्चन था, ये भी मेरा गलत हो गया. ये क्वेश्चन में मैं बहुत लाइक इंटरपोल का था, लाइक इंडिया में इंटरपोल से डायरेक्ट कम्युनिकेट कौन करता है. तो आई थॉट दैट द करेक्ट आंसर वाज NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बट नो, द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. CBI के अंडर में आता है, लाइक CBI डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है इंटरपोल से. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई डू इट रॉन्ग. एक आया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुआ था, तो वो 2015 में लॉन्च हुआ था. एक क्वेश्चन आया था आपका मुद्रा योजना के अलावा, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था लाइक क्वेश्चंस, हाँ, कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो लेटेस्ट में गवर्नमेंट कितना टारगेट कर रही है. तो इसका करेक्ट आंसर है 6.8%. ओके, 6.8% टारगेट है गवर्नमेंट का कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, लाइक विद रिस्पेक्ट टू GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस. एक क्वेश्चन आया था GK में, जनरल अवेयरनेस में, कि उन्होंने पूछा था, वेट आई हैव टू टेक दिस ऑन. सो एक क्वेश्चन था, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, लुक आई हैव टू, एक ब्रह्मोस पे था, लाइक जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया के साथ किसने पार्टनरशिप करके बनाया, लाइक रशिया इज़ द करेक्ट आंसर. और एक क्वेश्चन इस पे था कि जो, हाँ, एक इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें बोला था कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करता है एक लेवल पे, मतलब, तो उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट और डिफरेंट पॉवर्टी पे अफेक्ट करता है. तो वो उस इन्फ्लेशन का नाम क्या है, तो उस इन्फ्लेशन का नाम स्टैगफ्लेशन है, लाइक स्टैगफ्लेशन बोलते हैं. आई हैव डन दिस क्वेश्चन रॉन्ग. आई हैव लाइक by mistake I have like take hyperinflation, which is wrong. The correct answer of this question is stagflation. Okay, stagflation was the correct answer of this question. एक जो साइक्लोन मैंने बोला था, साइक्लोन का नाम है साइक्लोन टोकाटे करके, ऐसे साइक्लोन टोकाटे. एक पूछा था इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन का लाइक हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन में है, स्वीडन. ओके, स्वीडन इज़ द करेक्ट आंसर. और इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था P&O का फुल फॉर्म क्या है, तो P&O का फुल फॉर्म नहीं, F&O, सॉरी, F&O. तो F&O है ना, हाँ, F&O, फ्यूचर एंड लाइक ऐसे करके था इसका, फ्यूचर एंड आप क्या इसको मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था F&O, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक टर्म है. ये लाइक मैंने ये क्वेश्चन जो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स हुए थे, लाइक ये
जनवरी में जो मेंस हुए थे बैंक के, वो मैंने इसमें एक क्वेश्चन ये पाया था, एफ का फुल फॉर्म पूछा था। आई फॉरगॉट दिस, मैंने लाइक बाय मिस्टेक मैंने इसमें फिक्स्ड एंड ओपन कर दिया, बिकॉज आई थॉट फिक्स्ड एंड ओपन, फिक्स्ड एंड ओपन आई थॉट विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट में होता है ना फिक्स्ड एंड ओपन, बट आई वॉज लाइक अनअवेयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टॉक मार्केट, सो दिस क्वेश्चन आई हैव डन रॉन्ग। और एक क्वेश्चन आया था, यस, इसमें था कि जो पेट्रोल होता है उसका ब्लेंड करके 20% जो ब्लेंड करते हैं वो, मतलब गवर्नमेंट का एक टारगेट है, वो कौन से ईयर तक मतलब वो कर लेंगे 20% ब्लेंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर था 2025, ओके। और एक मैंने आपको MIA का ये इसका बता दिया था, और एक आया था इन्होंने, हाँ, प्रोजेक्ट कूपियर पे पूछा था। प्रोजेक्ट कूपियर बेसिकली अमेजन कंपनी का था। और एक इन्होंने पूछा था IOCL, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, IOCL, उसका प्रॉफिट कितना जा रहा है, उसका प्रॉफिट कितना मतलब जा रहा है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू करोड़ में पूछा था। ऑप्शंस लाइक ऐसे 1000 करोड़ में था, तो वो मेरे को इसका बहुत ही एग्जैक्ट तो नहीं पता था, बट दिस वाज द क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन था लाइक INS ध्रुव किसने बनाया है, तो INS ध्रुव लाइक हिंदुस्तान शिपयार्ड नहीं, हिंदुस्तान कुछ करके है, हिंदुस्तान ही इसका आंसर था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके HAL करके है, जिसने INS नॉट हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सॉरी, दो हैं, एक HAL है और एक जो इसमें इंडियन नेवी में आता है आपका ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये वाला इसका जो INS ध्रुव है ये करेक्ट आंसर है इसका, ये आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ओके। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन आपका था, वेट, आई हैव टू, स्टॉक एक्सचेंज, यस, जो फ्रांस का स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है, जो फ्रेंच का स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मुझे अभी क्या बोलते हैं, मैंने देखा भी था लेकिन वो मुझे ऑप्शन में नहीं मिला, मैंने ऑनलाइन देखा था इसका आंसर, बट वो मुझे ऑप्शन में नहीं मिला, CNC करके बोल रहे हैं। आई डिडेंट फाइंड दैट थिंग, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका ऑप्शन में था कि नहीं, बिकॉज आई हैव टिक्ड सम अदर ऑप्शन। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस जनरल अवेयरनेस। लुक, इन इस जनरल अवेयरनेस में वॉट आई फाउंड दैट some questions are like easy, some questions are moderate, and some questions I found very difficult. Yes, I found some question very difficult because exam तो FCI का था, Food Corporation of India, but they have taken this like the questions were asked totally on this banking level questions, okay, because there is a lot of questions they have asked on stock market, lot of questions they have asked on this your percentage like fiscal deficit, budget पे questions उन्होंने पूछे थे. So I found it is very very much you can say that some questions are very tough which I found, and some questions are of moderate level, but overall I can say that the general awareness was of moderate level. Again, I have attempted all questions of like GA and GK, but I have wrong, like मैंने इसमें गलतियाँ भी बहुत कर दी हैं, like बट जिसमें मैंने क्या बोलते हैं गलतियाँ करी हैं उसमें मुझे लाइक दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन था, लाइक 50-50 था, 50-50% का था, लाइक बट जब मैंने उसको लाइक देखा तो आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव रॉन्ग, लाइक इन जनरल अवेयरनेस GK रॉन्ग, ओके, मैंने गलत कर दिया. सो G and GK also I have attempted 45 questions, but I have done like in and around, मैंने questions गलत किए हैं इसमें भी. So let's see. But the question I found is very like tougher in this particular section when you compare with respect to all other section. GA I thought was very क्या बोलते हैं बहुत ही moderate and tough to level का था. क्या बोलते हैं आपको question अगर आपने GK नहीं पढ़ा होगा, जिसने like जो freshers होंगे और उन्होंने like बहुत ही simply GK पढ़ा होगा उनके लिए बहुत difficult हो गया होगा. I know because I found very uncomfortable with respect to the options, क्योंकि 5 options थे और like बहुत ही वो था. But let's see what happens. This was regarding this general awareness and GK. Now come to this management and ethics. Okay, look, management and ethics एक ऐसा section था जिसमें I found that all the 45 questions what I have discussed on my this platform of my channel, I have given these questions in a different way. It means that every question was interconnected with the questions which they have asked. Look, whatever videos I have put it on the my channel, they are like very much effective on this particular management and ethics, and I found that very much effective because I found that most of the questions they have taken from that particular the questions they have taken on that particular zone. So management and ethics का भी like questions में case study तो मुझे नहीं मिला. Case study, yes, I have not found any questions regarding case study, but the questions were very like बहुत ही lengthy questions थे, like 3-4 lines के. अगर 45 question है तो उसमें 25 से 30 questions तो ऐसे थे उन्होंने दे रखे थे 4 लाइन के, तो उसको पढ़ने में ही like 1 मिनट चला जा रहा था, 1 मिनट 1 minute 30 seconds. और वो questions like बहुत ही
डीप में उन्होंने पूछा था। लेकिन येस, आई फाउंड इवन मॉडरेट लेवल मैनेजमेंट एंड एथिक्स, बट द क्वेश्चंस वेयर लाइक जेन्युइन ऑन मैनेजमेंट एंड एथिक्स। जो भी सिलेबस उन्होंने लाइक दिया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और थ्योरीज़ पे भी थी, लाइक यूटिलिटेरियन थ्योरीज़ उन्होंने पूछा था, डिओन्टोलॉजीज़ के थ्योरीज़ पे था। ये आपके हेनरी फेयल का भी क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, हेनरी फेयल्स के क्वेश्चंस थे उसमें। और आपके ये यस जो ये रीइंफोर्समेंट थी, स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थी, उस पर एक क्वेश्चन आया था, उसका भी एक आंसर था, स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। So a lot many questions were there, but the question I found were of moderate level, and in this particular section also I have attempted all 45 questions, because look, अगर आप मेरे से पूरे सेक्शन में पूछोगे तो क्या बोलते हैं, अगर आप मेरे से फर्स्ट डिस्कस दिस लाइक मैनेजमेंट एंड एथिक्स, वी विल टॉक दिस लेटर। जो आपका ये क्या बोलते हैं मैनेजमेंट एंड एथिक्स का, ये बहुत ही लाइक मैं ये बोलूँगा कि इसमें टाइम वेस्टिंग वाला ज़्यादा था, कि मतलब यस टाइम टेकिंग था, आपके लिए नहीं था, सभी के लिए था ये टाइम टेकिंग। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे, लाइक 50% क्वेश्चन ऐसे थे 45 में, कि उनमें लाइक 4 लाइनें दी हुई थी और उसमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम हो जा रहा था, ठीक है। सो लेकिन जो लेवल था वो मॉडरेट कहूँगा मैं मैनेजमेंट एंड एथिक्स का। और इसमें क्वेश्चंस क्या ही बताना आपको, लाइक आपने एग्ज़ाम अगर दिया होगा तो आपको लाइक आइडिया हो गया होगा कि जो मैंने लाइक क्वेश्चंस कराए हैं या फिर जो मैंने वीडियोस दिए हैं आपको, क्वेश्चंस दिए हैं बेस्ट ऑफ 45 ऑन मैनेजमेंट एंड एथिक्स, यू डेफिनेटली फील दैट दोज क्वेश्चंस वर वेरी इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू what you have given in this shift 1 of this FCA AGM. Okay, and the last section was like this agriculture, economy and computer section. Computer awareness, I found that total questions were 7. I have alert you regarding this earlier in my videos that you might get 15 question or you might get less question or you do not get any question, but at least they have given 7 question of this computer awareness. And those computer awareness में एक question था, लाइक उन्होंने वायरस पे पूछा था। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे याद है, लेफ्ट उसमें था कि अगर आप कोई एक वर्ड पैड है उस पर लेफ्ट अलाइनमेंट करते हो लाइक, तो कौन सा की प्रेस करोगे, मतलब ऐसे ही कुछ था, उसका लेफ्ट आंसर था। और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस, एक क्वेश्चन आई फाउंड फ्रॉम, मतलब मुझे क्वेश्चन उतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट ये 2-3 क्वेश्चन थे और टोटल 7 क्वेश्चंस थे, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑल्सो आई डिडंट फाइंड एनी क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन, उन्होंने ज़्यादा टारगेट लाइक एग्रीकल्चर पे ही करा था। लाइक उन्होंने यस कंटूर बंडिंग पे क्वेश्चंस था, एक क्वेश्चन आपका था कि एक कंटूर बंडिंग पे हो गया, एक क्वेश्चन उन्होंने दिया था पोर्क पे कि कितना पोर्क अगर कोई खाए तो क्या बोलते हैं वो लाइक मतलब ऐसे ही था। इसका जो करेक्ट आंसर था 6.4 kg इसका आंसर था। आई हैव डन दिस क्वेश्चन रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, बिकॉज आई हैव चेक दिस 6.4 kg का लाइक वो खाना पड़ेगा तो फिर कुछ एक्सक्रीशन होता है, लाइक ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो ये रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ये था, हाँ 6, उसमें पूछा था कितना पोर्क को फीड करें कि उसका क्या बोलते हैं आपको वो एक तरह से फ्लैश दे, मतलब कि आपको आउटपुट दे, तो इसका 6.4 kg लमसम था आंसर, यस। सो एक क्वेश्चन ये था, और इन्होंने लाइक क्वेश्चंस पूछे थे, बेसिक्स भी पूछे थे और थोड़े टफ भी क्वेश्चंस थे, मुझे भी लगा टफ, लाइक 10-12 क्वेश्चंस आई फाउंड वेरी टफ इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। And in management and ethics I have attempted 45 question, in agriculture economy and computer awareness I have attempted 45 questions. Okay, so look, total out of 180 questions I have like attempted all 180 questions. Okay, I have attempted all 180 questions, but it is not like that I have done every questions correct, not at all. I have like done a lot many wrong questions. I am aware of that particular thing, but why I have attempted 180 questions, because the most of the questions which I have attempted I found that of like 50% मुझे लगा था 2 ऑप्शन में कंफ्यूज, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो जितने थे उसमें मैं 50-50 लाइक 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज था, और जितने भी था उसमें मैक्सिमम मेरे गलत हुए हैं, और वो 2 ऑप्शंस में ही लाइक आंसर्स थे। बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट थिंग, बिकॉज क्योंकि पढ़ा था तो फिर क्या बोलते हैं उसमें मुझे लगा कि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए, 50-50 में करना चाहिए। इवन मैंने 3 ऑप्शंस में भी करे हैं, but let's see what happened, because I have attempted all 180 questions of FCA AGM, this general administration shift 1. Okay, but again I am saying that like अगर जिन्होंने like 160 to 170 भी किया है, मैंने तो करा है, because I found that क्योंकि इतने maximum question I found that quite trickier and very tough, you can say that द एग्ज़ाम में आई थॉट मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, और ऐसा नहीं कि ओवरऑल मैं इसको रेटिंग दे रहा हूँ, सेक्शन वाइज दे रहा हूँ, लाइक मैथ्स रीजनिंग का मॉडरेट कह सकते हो आप। ये आपका जीए को मैं बोलूँगा कि डिफ़िकल्ट था, मेरे को डिफ़िकल्ट लगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको जीए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और मैनेजमेंट एंड एथिक्स मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट था, और जो एग्रीकल्चर था वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में ही आएगा, ठीक है।
तो ये रिगार्डिंग एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया ऑफ सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस ऑफ दिस FCI AGM, दैट हाउ वाज द एग्जाम, हाउ दे हैव सेट दैट दिस पेपर, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, एंड what is the exactness of the question they have asked in the exam. So this is regarding the complete overview on this FCI AGM shift 1 of 18th July. And again, don't think that I have done maximum, it means that I have a very good chance. Not at all. Even I am not considering that I have any chance of being like getting at par, because I know that there are a lot many candidates जिनकी accuracy भी अच्छी होगी. मेरी accuracy नहीं अच्छी है. Accuracy पे ही like exams clear होते हैं. So I found I have like less accuracy in general awareness. I have done a lot question wrong in GA GK, but I found like confused. I found myself very confused in two options or three options. That's why I have attempted. But look, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि मैंने कुछ क्वेश्चन स्मार्ट फॉर रिव्यू में भी डाले हैं, मतलब जो मैंने एग्ज़ाम दिया है 180 में. तो ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चंस को लाइक सेव मतलब वो कर लिया है. मैंने लाइक 149 क्वेश्चंस, आई एम रिमेंबरिंग दैट 149 क्वेश्चंस आई हैव लाइक डन, you can say that very effectively, and rest of the 31 question I have marked for review. I have done marked for review. Okay, 149 question I have done totally. Look, I have done exact 149 question, and 31 question I have done marked for review, where I feel a lot क्या बोलते हैं uncomfortable in those particular 31 question. So I have done that for marked for review, and 149 question most probably, but in that 149 also I am like I found that नहीं, मैंने क्या बोलते हैं कुछ बहुत क्वेश्चंस गलत किए हैं उस 149 में. Let's see what is going to happen. I am not considering anything with respect to the result right now. Okay, we have given the exam. The FCI AGM exam is complete now. All the shifts for technical, general administration, and the exam is over. Please do share your क्या बोलते हैं आप अपना वो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बताएं. How many questions you have attempted? How many correct questions you have attempted? Do try to tell me your total attempts, but also do try to tell me, आप मुझे अपना total attempts तो बताएं ही, ज़रूर बताएं, बट आप कोशिश करें कि आप अपना ये मतलब बताएं कि आपको लाइक कितने मतलब आपने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस किए हैं और कितने आपके क्वेश्चंस लाइक रॉन्ग हो रहे हैं, एज अ फीडबैक जस्ट फॉर लाइक जनरल थिंग. Okay, so this is it. I have like given everything regarding this exam analysis, a self-given exam analysis of shift 1 for 18 July. So this is it, and if you have like any questions you are in your mind regarding anything of you have given in that particular shift, you have any doubt regarding that question, please do share that question, so that even I think अगर मुझे भी लगा कि हाँ ये questions मैंने attempt like सही करा है या फिर गलत हो गया, तो I will definitely come to you with the answer. मैं भी answers like उसका शेयर करूँगा आपसे. And please do try to share in the comment section the questions which was asked in shift 1, the rest of the question which was asked in shift 1 for general administration, FCI AGM general administration, and also those students who have given technical, they also can share their shift questions. So okay, so this is it, and if you have any queries, anything, you can ask in the comment section. And lastly, if you are liking the channel, do subscribe the channel and do like my videos, and if any queries you can ask, I will definitely answer your queries. Okay, so this is it, ladies and gentlemen, this is Raj Deepak Singh. Thank you.